Students, let us continue with the first chapter. Before continuing further, let me just once again revise a concept which we had studied earlier. We knew about different types of numbers, and we had seen that all the numbers we have studied so far come under one heading, and that is the real numbers. Now, real numbers are basically of two types. The first type is rational numbers, and the second type is irrational numbers. So, rational numbers, if you remember the definition which you had studied previously, what are rational numbers? Rational numbers are those numbers which can be written in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. We had seen this thing that rational numbers are those numbers which can be written in the form p by q, where p and q both must be integers and q must not be equal to 0. For example, if we write any number of this form minus 4 by 7, that is an example of a rational number. If we write a number, simply suppose we write the number 6, that is also an example of a rational number, because 6 can be written as 6 upon 1. So all integers are also rational numbers. We had seen this earlier, all positive integers, negative integers, and even 0 is also a rational number. Why? Because 0 can be written as 0 upon 1, or you can also write 0 as some other thing like 0 upon 2, 0 upon 5, all are 0 only. So therefore 0 is also a rational number. So we had seen this earlier, all the positive integers, negative integers, and 0, all those are rational numbers. Apart from that, any other fraction which is written in the form integer upon integer, that is also a rational number. But if an integer is not written in the form integer upon integer, for example, if you have something written like this, root 3 upon 2, this is not a rational number. Why? Because root 3 is not an integer. Now we had also seen about irrational numbers. We had seen that any number which cannot be written in the form p by q, if it is not possible for a number to be written in the form p by q, then that number will be considered as an irrational number. The examples of irrational numbers, like for example, suppose we have the number root 3, that is also an example of irrational number. We have root 5, an irrational number. Basically, you also know this thing that square root of any non-perfect square number, suppose we write square root of 9, that is not an irrational number. Square root of any non-perfect square number, root 9 is 3. 3 is a rational number, so root 9 is not an irrational number. But suppose we write root 10, now 10 is not a perfect square, therefore root 10 will be an irrational number. So we had seen examples of rational numbers, irrational numbers. We had also seen this thing that numbers of this form, suppose we write 0.101010 and so on. Can you guess which type of number will be this? And we write something like this, 0.101101110111 and so on. Now both these numbers are of different types. Why? Because the first one, if you see over here, in the first one, this number is a non-terminating. Non-terminating means which does not end. Okay, ये नंबर कंटिन्यू हो रहा है आगे तक, 101010 इसी तरीके से आगे चलता चला जाएगा. इस तरीके के जो नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. दीज नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. Now this number is non-terminating and it is also known as recurring. Why recurring? Recurring because the same set of numbers keep on repeating. Here the set of numbers is 1 0, so 1 0 1 0 1 0. If same set of numbers keep on repeating, or the same number keeps on repeating, for example, if we write something like this, 0.333333, 3 keeps on repeating. So such type of numbers are known as non-terminating recurring decimal numbers.
And non-terminating recurring decimals, you have already seen this in 9th standard. Non-terminating recurring decimals are also which type of numbers? These are rational numbers. Now consider the second number. If we consider the second number here, it is 1 0 1 1 0 1 1 and so on. It is like that. So this is also a non-terminating number. Non-terminating means it is not ending. So this number is non-terminating, but this number is not a recurring number. It is not a recurring number. Why it is not a recurring number? Because the same set of numbers or integers is not repeating. If you see here, first we have 1 0, then we have 110, then we have 110. So same set of numbers is not repeating, and therefore this number is not a recurring number. If this number is not a recurring number, then it is which type of number? This number is a non-terminating, non-recurring decimal number. And any number which is non-terminating, non-recurring, it is also an example of irrational number. So as we can see over here, first number is a rational number while the second number is irrational number. I am not going into the details much because we have already done this in 9th standard, and right now we are discussing something from 10th standard. So now we know regarding rational numbers and irrational numbers. Now let us consider a few things which are given in the NCERT. So let us go back to the NCERT here. Now they have written here, recall a number S is called irrational if it cannot be written in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. I have already told you this thing regarding the irrational numbers. Now examples of irrational numbers, यहाँ पर आप देख सकते हैं √2, √3, √15, all these are square roots of non-perfect square numbers, so therefore again they are irrationals. Pi is a special number, irrational number, we all know this pi. And you can see over here the non-terminating, non-recurring decimal. And you can see this number, this is not in the form P by Q, where P and Q are integers. √2 and √3 are not integers, therefore this number is not a rational number. Now let us discuss a theorem, the proof of this theorem. I will not discuss the proof of this theorem because it is not important, so I will not discuss proof. I will just discuss the statement of this theorem. Let P be a prime number. If P divides A square, then P divides A where A is a positive integer. इस थ्योरम का मीनिंग क्या है? व्हाट डज दिस थ्योरम से? पहले हम देखते हैं कि थ्योरम हमें बताता है कि इफ P इज़ अ प्राइम नंबर, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर, फिर से हम वापस लौट जाते हैं और यहाँ पर हम कोई भी एक प्राइम नंबर कंसिडर कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3. हमने एक प्राइम नंबर कंसिडर कर लिया है, जो कि हमने यहाँ पर 3 ले लिया है. अब क्या है कि थ्योरम क्या बोलता है? इफ़ अ प्राइम नंबर P डिवाइड्स A स्क्वेयर. अब A कोई भी इंटीजर है, तो हम A को कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने A को ले लिया 9. अब ये बताता है कि इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वेयर, यहाँ पर डिवाइड्स A स्क्वेयर का मतलब ये है कि जब आप A स्क्वेयर को, जैसे अगर हम यहाँ पर A स्क्वेयर लिखते हैं, A स्क्वेयर इज़ 81, तो P डिवाइड्स A स्क्वेयर का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आप A स्क्वेयर को P से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा. दैट मीन्स इट कम्प्लीटली डिवाइड्स A स्क्वेयर. सम स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज, सो आई एम क्लैरिफाइंग दिस थिंग. P डिवाइड्स A स्क्वेयर मीन्स कि जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा. इट इज़ अ मल्टीपल. बेसिकली वी आर सेइंग A स्क्वेयर इज़ अ मल्टीपल ऑफ P. ये हम कहने की कोशिश कर रहे हैं. तो थ्योरम ये बोलता है कि अगर आप A स्क्वेयर को P से डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम देखने जाते हैं तो A स्क्वेयर का वैल्यू 81 है. अगर हम 81 को 3 से डिवाइड करें और हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए, तो आप A को भी P से डिवाइड करेंगे, 9 को भी आप 3 से डिवाइड करेंगे, तो भी आपको रिमाइंडर 0 ही मिलेगा. ये बेसिकली हमारा थ्योरम है. इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वेयर, डिवाइड का जो P डिवाइड्स A स्क्वेयर, इसको हमें अगर सिम्बॉलिक लैंग्वेज में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं P डिवाइड्स के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बनाते हैं, इसको हम रीड करते हैं डिवाइड्स. इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वेयर, देन P डिवाइड्स A ऑल्सो. ये हमारा थ्योरम है.
कि अगर हम 81 को 3 से डिवाइड करें, आप आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 and 1 21, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3 7 ज़ा 21। तो अगर हम 81 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 27, रिमाइंडर कुछ नहीं मिलेगा, 0 होगा। तो अगर 3 81 को डिवाइड करता है देन 3 विल डिवाइड 9 ऑल्सो। अगर आप 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको यहाँ पर आंसर 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया है कि इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p विल डिवाइड a ऑल्सो। ये हमारा थ्योरम है जो आगे आने वाले थ्योरम में यूज़ होगा। अब एक और एग्जांपल मैं इसका आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 7, ठीक है। अब 7 अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट 7 डिवाइड्स 441, 441 इज़ द स्क्वायर ऑफ 21, ठीक है। अगर 7 जो है वो 441 को डिवाइड करता है तो 7 21 को भी डिवाइड करेगा। लेट अस ट्राई दिस डिवीजन। हम 441 को 7 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 441 को 7 से आप डिवाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखने जाते हैं तो 7 6 ज़ा 42, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा यहाँ से और 1 आप कॉपी डाउन कर लेंगे नीचे तो 21 हो जाएगा। तो 7 3 ज़ा 21 आपको यहाँ पर मिल गया 0। तो इसका मतलब ये है कि 7 डिवाइड्स 63, सॉरी 7 डिवाइड्स, थोड़ा सा गलत लिख दिया ना, 7 डिवाइड्स 441। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दिस ऑल्सो दैट 7 डिवाइड्स 21 स्क्वायर। 441 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको 63 मिलता है। इसका मतलब 7 डिवाइड्स 441, 7 डिवाइड्स 21 स्क्वायर। 21 का स्क्वायर जो है वो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो अगर स्क्वायर डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा। तो हम इसके बाद ये बोल सकते हैं कि अगर 7 21 स्क्वायर को डिवाइड करता है देन 7 विल डिवाइड 21 ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। 7 डिवाइड्स 21 अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। थ्योरम ये बताता है कि अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर को एक प्राइम नंबर डिवाइड कर सकता है, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो अगर 7 21 के स्क्वायर को डिवाइड करता है देन 7 विल डिवाइड 21 ऑल्सो। यही यहाँ पर एक्सप्लेन करना था मुझे, ये मैंने आपको थ्योरम एक्सप्लेन कर दिया है। इस थ्योरम को हम यूज़ कर सकते हैं इन प्रूविंग अनदर थ्योरम। तो अब वापस लौटते हैं एक बार, यहाँ पर हम ये थ्योरम 1.3 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट थ्योरम जो है वो है थ्योरम 1.4। अब थ्योरम 1.4 हमें क्या बताता है? थ्योरम 1.4 हमें बताता है कि √2 इज़ इर्रेशनल। अब ये तो हमें पता है कि √2 इर्रेशनल है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसका नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कैसे काम करता है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि जो भी हमें प्रूव करना होता है उसका हम थोड़ा सा उल्टा सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अभी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ को गलत, अगर हमारा स्टार्टिंग गलत होगा तो जहाँ पर हम लास्ट में पहुँचेंगे वो भी गलत होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अहमदाबाद से हिम्मतनगर 70 किलोमीटर नॉर्थ की साइड में है। अगर आप अहमदाबाद से चलते हैं 70 किलोमीटर नॉर्थ तो आप हिम्मतनगर पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको ये बताऊं, मैंने आपको किसी भी एक ऐसी जगह पे छोड़ दिया जहां पर आपको नहीं पता कि वो कौन सी जगह है, लेकिन मैंने आपको बोला कि आप 70 किलोमीटर नॉर्थ में जाइए। जब आप 70 किलोमीटर नॉर्थ में गए तो आप हिम्मतनगर नहीं पहुंचे, आप किसी दूसरी जगह पर पहुंच गए, आप शिमला पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वो अहमदाबाद नहीं था। अगर वो अहमदाबाद होता तो आप 70 किलोमीटर नॉर्थ चलने के बाद हिम्मतनगर पहुँच जाते। इसका मतलब अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट रॉन्ग है तो जो फिनिशिंग पॉइंट है वो भी रॉन्ग होगा। अगर आप किसी दूसरी जगह से 70 किलोमीटर नॉर्थ चले और आप शिमला पहुँच गए, इसका मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो आपका रॉन्ग था। अगर एंडिंग पॉइंट रॉन्ग है तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी रॉन्ग था। इसी तरीके से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड काम करता है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं? कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग होता है अपोज करना, ठीक है, ऑपोजिट स्टेटमेंट ले लेना।
तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कैसे काम करता है, शुरुआत में हम कोई गलत स्टेटमेंट ले लेते हैं या जो स्टेटमेंट रॉन्ग होता है उसको हम ट्रू सपोज कर लेते हैं और फिर हम आगे लॉजिकली प्रोसीड करते चले जाते हैं। जब हम आगे लॉजिकली प्रोसीड करते चले जाएंगे तो लास्ट में जाके हमें क्या मिलेगा, एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मिलेगा जो कि रॉन्ग होगा। तो हमारा जो रॉन्ग या फिर जो हम बोल सकते हैं कि रॉन्ग इनिशियल हाइपोथेसिस होगा हमारे पास एक, फिर उसके बाद लॉजिकल स्टेप्स होंगे और लास्ट में हमें जो मिलेगा वो एक रॉन्ग रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर आपको रिज़ल्ट रॉन्ग मिलता है और आपके सारे के सारे स्टेप्स लॉजिकल ही थे तो इसका मतलब जो आपका इनिशियल स्टेप था वो भी रॉन्ग था। तो इसका मतलब जो हमारा इनिशियल स्टेप था वो हमें रेक्टिफाई करना चाहिए। अगर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं और एक पॉसिबिलिटी रॉन्ग है, इसका मतलब दूसरी वाली पॉसिबिलिटी ही सही होगी। तो इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड काम करता है। शुरुआत में हम उल्टा सपोज कर लेंगे, अगर एक या तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा तो हम उसमें से कोई एक पॉसिबिलिटी कंसिडर कर लेंगे, लॉजिकली प्रोसीड करेंगे। लास्ट में अगर हमें रॉन्ग रिजल्ट मिल जाता है इसका मतलब शुरुआत का जो हमारा पॉसिबिलिटी था वो रॉन्ग रहेगा। तो इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड काम करता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 2 इज़ रैशनल। हम सपोज कर लेते हैं कि रूट 2 जो है वो रैशनल है, ठीक है। अगर वो रैशनल है तो उसको हम r/s की फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट रूट 2 एज r/s। हमें पता है हर एक रैशनल नंबर को हम a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर r और s में कोई कॉमन फैक्टर है तो हम उसको कैंसिल करने के बाद इसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो अगर आपने r/s फॉर्म में लिखा और जो भी कॉमन फैक्टर्स थे उसको कैंसिल कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर हमने लिखा 15/10, अब इसमें कॉमन फैक्टर 5 है, अगर आपने 5 से कैंसिल कर दिया तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 3/2। तो ये जो 3/2 है इसमें 3 और 2 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, देयरफॉर 3 and 2 आर को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमने रूट 2 को a/b फॉर्म में लिखा वेयर a एंड b आर को प्राइम। इसके बाद क्या है, अगर आपने रूट 2 इज इक्वल टू a/b लिखा तो b को आप ले जा सकते हैं लेफ्ट साइड पे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b रूट 2 इज इक्वल टू a। तो नेक्स्ट स्टेप यही है हमारा, b रूट 2 इज इक्वल टू a कर दिया। और उसके बाद क्या है, हमने थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लिया, रूट 2 को आगे लिख दिया, b को पीछे लिख दिया और स्क्वेयरिंग कर दिया। तो जब हम इसका स्क्वेयरिंग कर देंगे तो ये ऐसे स्क्वेयर होगा। जब इस तरीके से आप स्क्वेयर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2b²। तो 2 आगे आ गया इधर और b² वाला टर्म पीछे लिख दिया, 2b² इज इक्वल टू a², ठीक है। अब इसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b² इज इक्वल टू a²/2। ये NCERT में नहीं लिखा है बट ये एक एक्स्ट्रा स्टेप अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। b² इज इक्वल टू a²/2। इसका मतलब क्या है, b इज़ एन इंटीजर, तो b² भी इंटीजर होगा और a²/2 जो है, यहाँ पे मैं फिर से लिख के दिखा देता हूँ इसको एक बार, a²/2 इज इक्वल टू b²। नाउ b इज एन इंटीजर, देयरफॉर b² इज ऑल्सो एन इंटीजर। इसका मतलब अगर हम a² को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें इंटीजर मिल जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं है, हमें इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि a² इज डिविजिबल बाय 2 और 2 प्राइम नंबर है और थ्योरम के हिसाब से हमें पता है कि अगर 2 a² को डिवाइड कर रहा है, अगर कोई प्राइम नंबर a² को डिवाइड कर रहा है देन 2 विल डिवाइड a ऑल्सो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर a/2 इज ऑल्सो एन इंटीजर और a/2 को हमने लिख लिया c। तो देयरफॉर वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2c। तो यहाँ पर लिख दिया इन्होंने a इज इक्वल टू 2c। अब हम नेक्स्ट इसका स्टेप देख लेते हैं, फिर से स्क्वेयरिंग करना है हमें। तो यहाँ पर फिर से स्क्वेयरिंग कर दिया एक बार, तो हमें जब फिर से स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमें मिल जाएगा, एक मिनट पिछला स्टेप मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। a इज इक्वल टू 2c हमने लिखा था, उसके बाद हमें क्या करना है, इसका स्क्वेयरिंग कर देना है। तो जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a² इज इक्वल टू 4c²। बट हमें पहले से पता है, ये पता है कि a² इज इक्वल टू 2b²। तो यहाँ पर a² की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2b²। तो 2b² इज इक्वल टू 4c²। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर कैंसिलेशन कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आपको क्या मिलेगा, b² इज इक्वल टू 2c²। और इसी के बाद अगर आप एक स्टेप और आगे चले जाएँ तो इसको हम लिख सकते हैं b²/2 इज इक्वल टू c²।
नाउ बी स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी स्क्वेयर मीन्स 2 डिवाइड्स बी स्क्वेयर, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 2 डिवाइड्स बी स्क्वेयर एंड सो 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो, थ्योरम है हमारे पास 1.3। तो देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। कैसे आया ये हमारे पास? बिकॉज यहाँ पर हमने सेकंड तरीके में देखा 2 डिवाइड्स बी स्क्वेयर, उससे पहले हमने ये भी देखा था, यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिखाया था 2 डिवाइड्स ए स्क्वेयर, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 डिवाइड्स ए स्क्वेयर, ठीक है। तो 2 डिवाइड्स ए स्क्वेयर भी हमने प्रूव किया, हमने ये भी प्रूव किया कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वेयर, इसका मतलब 2 दोनों को डिवाइड करता है, इसका मतलब ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। और अगर ए एंड बी का कोई भी कॉमन फैक्टर है तो ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, यहाँ पर अगर ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 है तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा इस फैक्ट को दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। मतलब ए एंड बी को हमने शुरुआत में ही को प्राइम लिया था, हमने बता दिया था कि भाई आर और एस को कैंसिल करके जो भी कॉमन फैक्टर्स थे वो हटाने के बाद ए अपॉन बी आया था, तो ए और बी का और कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता 1 के अलावा, ये शुरुआत में ही हमने देख लिया था। लेकिन लास्ट में हमें क्या मिल रहा है? लास्ट में हमें ये मिल रहा है कि 2 जो है वो ए और बी का कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वही रॉन्ग था। तो हम बोल सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अ रीज़न बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that root 2 is rational and therefore we conclude that root 2 is irrational।